प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मधुर नाम से आप सभी को स्वागत है आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सभी के सामने हम लोग लेके आए हैं, वो है सूरज, चांद और तारे। क्या है उसका रहस्य आज हम जानेंगे। हमारे बीच में है जोनाथन, वो इस विषय में बहुत ही अच्छी तरह से हम सभी को समझाएंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे भाई सैम। उससे पहले हम लोग चलेंगे वर्शिप में। हमारे बीच में है भाई मार्क, वो हमें वर्शिप में अगुवाई करेंगे। Good morning. It's a joy to be here another Sunday. And it's a joy to know that God has been with us throughout the week and He has kept all harm and danger away from us. Let's keep in mind that the light of the world came into darkness. Our God, who was glorious in heaven, came down and humbled Himself for our sake. So let's go into worship and praise His name. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. आइए भाइयों और बहनों, इस वक्त वर्शिप में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम याद करेंगे कि प्रभु का प्यार हमारे लिए कितना अनोखा है। वो हमें टूटकर बिखरने नहीं देता, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। टूटकर बिखरने न दे
देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। Good morning to all of you once again, आप सभी को गुड मॉर्निंग फिर एक बार, and thank you for joining with us. And good to know that you are staying connected with us. और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छी बात है सुन के कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। So we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and we know that you will be blessed today. और आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम ढेर सारा अभिनंदन देते हैं और हमें विश्वास है कि आज आपको आशीष ज़रूर मिलेगा। So we will have a short prayer before going to God's word. परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक
छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Lord, we glorify your name. You're the King of Kings and Lord of Lords. Lord, we ask you that you open our heart and spirit, that the spirit of understanding and enlightenment come upon us, Lord, that we may know you today more in a deeper way. Help us and open our eyes. Lord, may this truth and may your word purify us, sanctify us, and bring us more close to you. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। So today we will be dealing with another topic, and this is sun, moon, and stars. आज और एक विषय के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। यह विषय है सूरज, चांद और तारे। So what is this mystery and what is this revelation behind the sun, moon, and stars? तो यह सूरज, चांद और तारे के पीछे में क्या रहस्य है, इसे हम जानेंगे। So we will begin with two verses, Genesis 1, verse 14 and then verse 16. दो पदों के साथ में हम आरंभ करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14 पद और 15 पद। So it says here, and God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. और परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हो, और वह चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। So we know that in the fourth day, God creates the sun, moon, and stars. तो हम जानते हैं कि चौथा दिन में परमेश्वर सूरज, चांद और तारे को बनाए। Now, in verse 16, I will read, it says, and God made these two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है वो महान ज्योति को उसने बनाया ताकि वो दिन में राज करे, और वो धीमी सी जो ज्योति है उसको रात के लिए राज करने के लिए बनाया, और तारे भी बनाए। So, we will see what is this mystery and what is this revelation that we can learn from sun, moon, and stars. तो हम देखेंगे कि ये रहस्य क्या है और हम क्या सीख पाएंगे सूरज, चांद और तारे से। The first thing we see, God made these stars, moon, and sun for seasons and for sign. सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे को इसलिए बनाए ताकि वो समयों के बारे में बताए। That is why during major world events or historical events, there were always some sign that was seen in the moon or it was seen in the stars. इसलिए हम देखते हैं जब जब कोई बड़ा ऐतिहासिक ऐसे कोई घटना हुआ था, तो हम देखते हैं कि सूरज, चांद और तारे के साथ में बहुत करीबी इसका एक रिश्ता हुआ था। So God made these stars and moon and sun to give us a message, give a message to the world. तो परमेश्वर ये तारा, चांद और सूरज इसलिए बनाए ताकि इसके द्वारा कुछ संदेश भी हमें मिले। That is why God made the sun, moon, and stars. If you take the initial, it is SMS. और आप देखिए अंग्रेजी में जो है सन, मून, स्टार, इसका पहला जो अक्षर है वो SMS है। So sometimes God uses it as a SMS to send a message to the world of what is coming. तो कभी परमेश्वर कभी कभी इस पृथ्वी के लोगों के लिए एक SMS भेजता है कि क्या आने वाला है। So in Israel history, we see that these three things plays a major role: sun, moon, and stars. और इज़राइल का इतिहास में हम देखते हैं कि सूरज, चांद और तारा जो है काफ़ी एक बड़ा रोल यहाँ पे वो लोग करते हैं। So whenever a disaster was going to come, or a calamity, or an enemy would attack them, they would always find a sign in the stars. जब जब कोई दुर्घटना या कोई दुश्मन आक्रमण करने अगर जाता था तो तारे में और चांद में कुछ ना कुछ चिन्ह पाया जाता था। There are three personalities which I want to draw your attention to. तीन ऐसे प्रमुख
व्यक्तियां हैं जो मैं चाहता हूं कि आप उनके द्वारे उनके ओर अपना ध्यान को केंद्रित करें। The first person is Samson. पहला व्यक्ति है सैमसन। Now, Samson was a judge and he killed many of the Philistines and many of the enemies of the people of God. अब सैमसन जो है वो एक न्याय करने वाला था और बहुत सारे फिलिस्तीन के लोगों को भी उसने मारा और परमेश्वर के दुश्मनों को भी। Samson acted like the sun and he destroyed the enemies. सैमसन जो है वो एक सूरज के समान काम किया और दुश्मनों का घात किया। That is why the word Samson means the sun. इसलिए वो जो शब्द सैमसन है उसका मतलब सूर्य। The second person is Laban. और दूसरा जो व्यक्ति है वो है लबान। Now, Laban means moon. अभी लाबान का अर्थ होता है चांद। Now, similarly, like the moon is deceptive, it gives light, but it is not its own light. और जैसे देखिए चांद जो है वो ज्योति तो हमें देती है मगर असल में उसका खुद का नहीं है। So, when Jacob met Laban, we see that Laban cheated Jacob. और इसी प्रकार से हम देखते हैं जब लबान जो है याकूब के साथ में मुलाकात करता है तो लबान जो है याकूब को धोखा देता है। So, he wanted to marry a wife and he found another wife. तो वो एक स्त्री को विवाह करना चाह रहा था मगर वो दूसरा एक स्त्री पा लिया। Even there was a event regarding goats, and we see the deception of Laban over there. और हम देखते हैं और एक घटना को जहाँ पे ढेर सारे भेड़ बकरियाँ का जो है वो घटना है, वहाँ भी हम देखते हैं कि लबान ने कुछ न कुछ एक धोखा किया। So, there are many Jewish scholars, they compare the trouble of Israel with the event of Jacob being cheated by Laban. यहूदियों के बहुत सारे जो है विद्वान लोग हैं, इज़राइल में जितना भी घटना होता है वो जो है लबान के साथ में जोड़ते हैं। So, we know that Jacob worked for Leah 7 years and again for Rachel another 7 years. हम जानते हैं कि याकूब जो है लिया के लिए 7 वर्ष काम किया और जो है उसके बाद में फिर रेचल के लिए और 7 वर्ष काम किया। Because Hitler ruled for almost 7 years and they were tortured under him. क्योंकि हिटलर जो है वो लगभग 7 वर्ष तक काम किया और उसके भीतर में उसके राज्य के भीतर में बहुत सारे जो है वहाँ पे ताड़ना उन्हें मिला। Because Jacob represents Israel. क्योंकि याकूब जो है वो इज़राइल को दर्शाता है। But also at the end time, Israel will face another 7 years trouble. मगर अंत के समय में हम देखेंगे कि इज़राइल को फिर 7 वर्ष तक बहुत ताड़ना मिलेगा। And finally, when this end time trouble will come to Israel, it will be like the days of Esther. और आखिर में जब ये अंत के समय में जो है परेशानी इज़राइल के ऊपर में आएगा, ये इस्तर के समय में जैसा हुआ था, इस्तर जो रानी थी वैसे ही होगा। Because Esther means the star. क्योंकि एस्तर का मतलब होता है तारा। So when there is darkness and night, then only the star appears. और देखिए जब रात होता है तभी जो है वो तारा नज़र आता है। So in the morning we cannot see the stars. और दिन के उजियाले में तो तारा हमें नज़र नहीं आता। So when darkness came to the Jews and Haman was going to kill them, that time Esther appeared and saved them. और यहूदियों के ऊपर में जब जो है अंधियारा छा जाता है हमेम के द्वारा, तब एस्तर जो है वो आके उन्हें बचाती है। Because stars represents hope. क्योंकि तारा जो है वो आशा को दर्शाती है। So Samson means a sun. तो सैमसन का मतलब होता है सूर्य, Laban means moon. लबान का मतलब होता है चांद And Esther means stars. और एस्तर का मतलब होता है तारे। But there is a very powerful thing that we need to understand from this. Moon, sun and stars, there is something hidden in this. मगर और एक बात यहाँ पे छुपा हुआ है जो काफ़ी सामर्थ्य देने वाली बात है, ये तारे, चांद और सूर्य के पीछे में। And how it applies to us. और हमारे जीवन में ये कैसा प्रभाव होता है। The sun represents God. सूर्य परमेश्वर को दर्शाता है। Moon represents Israel. चांद इज़राइल को दर्शाता है। That is why for the moon to become full, it takes 14 days. इसलिए चांद को पूरा होने के लिए 14 दिन लगता है। And so, from Abraham to Solomon building this temple, it was 14 generations.
तो यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम से लेके सुलेमान जब तक मंदिर का स्थापना किया वो 14 पीढ़ी था। And after almost 14 days, the moon goes back to dark. और देखिए लगभग फिर 14 दिन बाद जो है वो चांद फिर छुप जाता है। Because after 14 generations of Solomon, again they went into Babylon captivity and darkness, spiritual darkness. क्योंकि फिर देखते हैं कि सुलेमान का 14 पीढ़ी के बाद में फिर एक बार जो है इज़राइल जो है बंदवाई में चले जाता है। And Israel's day, month, and festivals is connected to the moon. और इज़राइल का दिन और त्यौहार चांद का साथ में काफ़ी जुड़ा हुआ है। But the church is compared to stars. मगर कलीसिया जो है वो तारे के साथ में जुड़ा हुआ है। So the sun is God. तो सूर्य जो है वो परमेश्वर का जैसा है The moon represents the Israel, और चांद जो है वो इज़राइल को दर्शाता है and stars represents the church. और तारे जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। That is why God made the stars on the fourth day. इसलिए जो है परमेश्वर ने तारे को चौथा दिन में बनाया। So when Jesus was born after 4,000 years. और इसलिए हम देखते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तो वो 4000 वर्ष बाद में जन्म लिया। And when he was born, they could see a star. और उसने जब जन्म लिया तो वे लोग तारे को देखे Because it was a fulfillment that Abraham's descendants will be like stars. क्योंकि यह एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखते हैं कि इब्राहिम के संतान तारे के समान होंगे। Because the promise of God that Abraham's descendant will be like the sand represents the Jews. क्योंकि परमेश्वर का वायदा जो है कि इब्राहिम का वंश जो है वो रेत के समान होगा वो यहूदियों को दर्शाता है। But the stars represents the spiritual seed. मगर तारे जो है वो आत्मिक बीज को दर्शाता है। So when Jesus was born, we see the star appeared. तो यीशु जब जन्म लेते हैं तो हम देखते हैं वो तारा जो है वो नज़र आया। So the sun represents the father. तो सूर्य जो है वो पिता को दर्शाता है Moon can represent the mother. और चांद जो है वो माँ को दर्शाती है And stars represents the children. और तारे जो है वो बच्चे को दर्शाता That है। is why God said, "Be fruitful" to Adam. इसलिए परमेश्वर ने आदम को कहा कि तुम फलवंत रहो। So many stars and the multitude of stars represents God's promise. तो ढेर सारे तारे को जब हम देखते हैं वो परमेश्वर के वायदे को दर्शाता है। It also represents blessing. ये आशीष को भी दर्शाता है। So the moon does not have its light. The moon takes the light of the sun and reflects it. तो चांद को देखिए उसका खुद का कोई ज्योति नहीं होता है, सूर्य की ज्योति को लेके वो चमकाती है। Similarly, a wife or a mother also takes the light of the husband and reflects it. और हम देखते हैं ठीक इसी प्रकार से एक पत्नी जो है वो अपना पति का रोशनी को और एक माँ जो है अपना जो है उसका पति जो है उसका रोशनी को लेती है और दर्शाती है। Now the moon and stars both appear at night. Why? अब देखिए चांद और तारा दोनों रात को ही क्यों नज़र आते हैं? Because it was in a great persecution that Israel was born, and it was in very big persecution that the church emerged. काफ़ी सताव के बीच में इज़राइल का जन्म हुआ और काफ़ी सताव के बीच में कलीसिया का भी जन्म हुआ। So when there was a great persecution, when Jesus died and the Roman persecution took place, then the church started flourishing. और देखते हैं जब यीशु मर गया था तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़ा एक सताव आया और उसके बाद में देखते हैं कि कलीसिया जो है अपना स्थापना की। And even in Israel's flag, we see that there is a star. और इज़राइल के जो है तिरंगा में देखिए वहाँ भी एक तारा नज़र आता है Because God used Israel to birth the church. क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल का इस्तेमाल किया कलीसिया को जन्म देने के लिए। Because through Israel, Jesus was born. क्योंकि इज़राइल के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। So we represent the stars. तो हम लोग जो है तारे को दर्शाते हैं। So we are very important. तो हम काफ़ी बहुमूल्य हैं। I will read a verse now. Revelation 1:16. मैं एक पद को पढ़ूंगा, प्रकाशिक वाक्य उसका पहला अध्याय का 16 पद। It says, "And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was as the sun shining in strength." और वो अपने दाहिने हाथ में
7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। So, we see here that Jesus' face is like a sun. तो हम देखते हैं यीशु का चेहरा जो है वो सूरज के समान है। And in the book of Revelation, the moon also represents Israel. और प्रकाशिक वाक्य की किताब में भी देखिए चांद जो है वो इज़राइल को दर्शाती है। But now in this verse, if you read, in Jesus' right hand there are 7 stars. अब इस पद में अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यीशु के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं It says the 7 stars are the 7 messengers of 7 churches. और ऐसा कहते हैं कि ये 7 तारे जो है वो 7 संदेश देने वाले हैं कलीसिया को। Because the word messenger doesn't necessarily mean it is an angel. तो ये संदेश देने वाला जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई स्वर्गदूत होगा, Because in the Bible, the devil is compared to a star, क्योंकि बाइबल में देखिए शैतान को भी तारे के साथ में जोड़ा जाता है। the fallen angels are compared to stars. जो स्वर्गदूत गिर पड़े आसमान से उन लोगों को भी तारे के साथ में जोड़ा जाता है। Even other angels are compared to stars. और बहुत सारे ऐसे भी स्वर्गदूत हैं उनको भी जो है तारे के समान दर्शाया जाता है। And even pastors, Christians also compared to stars. और पासवान और जो मसीह लोग हैं उनको भी जो है तारे के साथ में जोड़ा जाता है। So we are the light of the world. तो हम लोग जो है इस संसार के ज्योति है। Our light shines when there is darkness. हमारा ज्योति चमकता है जहाँ अंधेरा होती है। So we are like a star, and there is many comparison between a star and a Christian. तो हम एक तारे के समान है और एक तारा और एक मसीह व्यक्ति के बीच में काफ़ी जो है हम एक तालमेल को देखते हैं। Because every star has a beginning and end. क्योंकि हर एक तारा का एक शुरुआत और अंत है। Like we have a birth date and a death date. जैसे हमारा जन्म का एक दिन होता है और मृत्यु का एक दिन होता है। Most of the stars are made of dust. बहुत सारे तारे जो है वो धूल से बनाया गया है। And Adam was made by dust. और आदम को भी जो है धूल से या मिट्टी से बनाया गया है। Every star is unique, different colors. और हर एक तारा जो है वो बिल्कुल अद्भुत है और अलग अलग रंग में पाई जाती है। Just like God made us, we are different from and unique from one another. जैसे परमेश्वर ने हमको भी बनाया, देखिए एक दूसरे से बिल्कुल अलग हम दिखते हैं। Now, a lifespan of a star is determined by how much fuel is inside the star. अब एक तारा का जीवन उस पे निर्भर करता है कि उसके अंदर में कितना तेल है। And also how it can handle pressure inside it. There is a great pressure inside the stars. और एक तारा के अंदर में काफ़ी बोझ है और वो कैसे उस बोझ को संभालती है उसके ऊपर में निर्भर करता है। So a star shines when it can handle pressure and it uses the fuel inside. और एक तारा तब चमकता है जब बहुत सारे बोझ को वो सह लेता है और उसके भीतर में जो तेल है उसके माध्यम के द्वारा वो चमकना शुरू करता है। So the more we use our spiritual fuel, the more we shine. ठीक उसी प्रकार से हम अपना आत्मिक तेल को जितना इस्तेमाल करते हैं हम उतना ज़्यादा चमकेंगे। And also we need to handle pressure and God sees that. और हमें बहुत सारे बोझ का सामना करना है और संभालना है और परमेश्वर उसे देखता है। And so we need to remember that our star will shine in darkness. तो यह बात हमें अच्छा से जान लेना चाहिए कि हमारा तारा जो है वो अंधेरे में चमकेगा। When Paul was going in a ship and there was a big storm, जब पौलुस एक नाव में जा रहे थे और एक तूफान उठी, the book of Acts says that he was searching for stars. There was no star in the sky. और प्रेरितों की किताब में ऐसा लिखा है कि वो तारा को खोज रहा था मगर आसमान में कोई तारा नजर नहीं आया। So God wants to use us to give hope. तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं आशा देने के लिए। So even when Jesus was born,
the star was appearing in the night sky. और हम देखते हैं कि यीशु का भी जब जन्म हुआ तो वो तारा जो है आसमान में नजर आ रहा था, Because even when he was born, there was darkness in which he was born. Herod was killing the children. क्योंकि जब यीशु का जन्म हुआ उस समय में भी काफी अंधेरा था, क्योंकि हेरोद राजा जो है वो छोटे बच्चे को मार दे रहे थे। In midst of persecution, in midst of darkness, God will make your star shine. और ऐसे देखिए, सताव के बीच में और अंधेरा के बीच में परमेश्वर आपका तारा को चमकाएगा। And in this end days, God is using and building and raising many stars for His kingdom. और इस आखिरी दिनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर काफी ऐसे तारों को लेके उनका इस्तेमाल कर रहा है उसका राज्य को बढ़ाने के लिए। Why there were 7 stars in Jesus' hand in Revelation? क्यों प्रकाशिक वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यीशु के हाथ में 7 तारे थे? Because it represents God's work. The hand represents God's work. He wants to use us. क्योंकि हाथ परमेश्वर का कार्य को दर्शाता है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। And whenever God wants to start something new, He will use us to start. और जब कभी परमेश्वर नया कुछ आरंभ करना चाहते हैं तो हमें वो इस्तेमाल करेगा। That is why in the word start, we have the word star. इसलिए अंग्रेजी में स्टार्ट शब्द का स्पेलिंग जो है उसे देखेंगे तो उसमें स्टार भी पाया जाएगा, Because you are the star which God wants to use to start something new. क्योंकि आप वो स्टार है जिसके द्वारा परमेश्वर कुछ नया करना चाह रहे हैं। May God bless all of you with this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारे से आप सभी को आशीष करे। Shall we look to God and pray? हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा नाम को हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज इस वचन के माध्यम से तेरा आशीष हमें महसूस हो रहा है। और हम जो निराश हो गए थे कुछ ना कुछ परेशानी की वजह से, हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं कुछ ना कुछ समस्या की वजह से, आज इस वचन के माध्यम से तूने हमारे जीवन में एक उम्मीद जगाया है। प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस समय में ये वचन को सुने हैं, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी अंधेरा है, अगर उनको कोई रोशनी नजर नहीं आ रहा है तो ये बात का एहसास उनको इस वचन के माध्यम से हो जाए कि वे भी एक तारे हैं और परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करना चाह रहा है। इसी प्रकार से हमें आशीष कर और सारे कलीसिया को आशीष कर, और प्रभु इस देश में और इस संसार में तेरा ज्योति सर्वदा चमकता रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। Thank you for joining with us. बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दें।